Hello friends, welcome to my YouTube channel Tech Shorts. First of all, thank you for all your appreciation and feedback to our first series, Techs on YouTubers. Now we are back with another series which is on startups. Yes, a startup. And this is an introduction episode, and as and long we go ahead in this series, we'll discuss more about the tech. So सबसे पहले let's understand startup क्या होता है. What defines a startup? Although बहुत definitions हैं startup को define करने के लिए. So here we are only discussing a few elements like a startup always comes up with a growth. So जहाँ पे growth होती है which is scalable in no time, like over the night subscribers आ जाते हैं, over the night users आ जाते हैं. So and then there is a commitment then with a common vision to achieve something. Then there is innovation, a problem solving attitude of the team. Innovation hai, and then with the help of a technology. So all these elements defines a startup. Now in year 2016, Jan 2016, government has also come up with its own Startup India action plan, right? And under that action plan, government has also defined the meaning of a startup. So basically they say that as for the definition, it says that you must be an entity. प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए या पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होनी चाहिए, कंपनी होनी चाहिए. एज ऑफ अ स्टार्टअप शुड बी 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. रेवेन्यू उसका 100 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए. और नेचर ऑफ एक्टिविटी, this is very important to define a startup. Nature of activity, basically it's working toward innovation, development of a product or improvisation of a product or process, scalability, job creations, wealth creation. So this is a technical definition which is given by the government in its plan. And if you understand about the India startup landscape, recently last September 2020, government has come up with this ranking of the startups which are located in various states. And one of the major thing here is that India is the third largest country which offers startup ecosystem in the world. It is after US and China. So and सबको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं. एंड स्टार्टअप्स का अगर हम कोई नेम जब भी सोचते हैं, इट कम्स एट ओयो, पेटीएम, लाइकवाइज क्रेड. सो देयर आर वेरियस स्टार्टअप्स जो आज के टाइम पे यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं. सो if you see the life cycle of a startup, it's basically an ideation. एक आइडिया से स्टार्ट होती है, आइडिया को वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट के बाद उसमें ट्रैक्शन जनरेट होता है. व्हेन यू से ट्रैक्शन मतलब एक कस्टमर्स आते हैं, रेगुलर कस्टमर्स आते हैं, न्यू कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर एक्विजिशन होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है बेसिकली. एंड देन ट्रैक्शन से वो ग्रोथ स्टेज पे जाते हैं, एंड देन ग्रोथ स्टेज के बाद एग्जिट करते हैं, मतलब आईपीओ लेवल तक चले जाते हैं. लाइकवाइज अभी हम रिसेंटली सुन रहे हैं कि जोमेटो में कम अप with an IPO, Easy Trip which was a कभी स्टार्टअप हुआ करता था, आज के टाइम पे उसका IPO लिस्ट हो रहा है. So Paytm है also be thinking for an IPO, Flipkart is also thinking for an IPO. जो कभी एक आइडिएशन लेवल पे थे, आज वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. So this is how a life cycle of a startup goes. Now in this series basically what we will discuss during this entire life cycle of a startup, एक टैक्स का क्या रोल होता है, एक फाइनेंस का क्या रोल होता है, and how the tax and finance helps in the life cycle or in the growth of a startup. So आने वाले एपिसोड्स में what we will basically discuss कि as a startup जब एक आइडिएशन और वैलिडेशन लेवल पे होता है तो उसकी एक लीगल एंटिटी कैसी होनी चाहिए. क्या वो एक पार्टनरशिप हो, क्या वो एक कंपनी हो, क्या वो एक एलएलपी हो. जो इनिशियल इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना, शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स वगैरह ड्राफ्ट करना, उसमें क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस करना. गवर्नमेंट, एज यू ऑल नो दैट स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान आया था, तो गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या होंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट भी दिया जाता है, सबको पता है थोड़ा थोड़ा, बट इन दिस सीरीज हम इसको ब्रेक करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे. हर एक स्टार्टअप का जो आइडिएशन होता है एक पेटेंटेड होता है, अपना यूनिकनेस होती है उसमें, तो वो एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना, उसका ट्रेडमार्क करना. तो इनिशियल फेज में ये कुछ की एलिमेंट्स हैं जहाँ पे टैक्स का रोल होता है. देन इफ यू सी ट्रैक्शन लेवल पे, या जब आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, वंस यू बिकम अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और यूनिकॉर्न, तो वहाँ पे टैक्स का फाइनेंशियल रोल का ये होता है कि रेगुलर कंप्लायंसेस क्या हैं, आपके एम्प्लॉय कंप्लायंसेस क्या हैं. जब कोई फंडिंग आती है तो ड्यू डिलिजेंस होता है,
इन्वेस्टर के साथ एग्रीमेंट होता है, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट होता है। तो ये हम एलिमेंट्स आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू थिंक देयर इज एनी अदर टॉपिक विच यू वांट अस टू डिस्कस, प्लीज मेंशन इन द कमेंट, सो दैट हम वो टॉपिक भी आगे जाके इसको इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून and do subscribe the channel and let's stay in touch. Thank you very much.